Hello students and welcome back to our channel. We are starting with chapter 2 in economics, that is utility analysis. You have learnt about what is utility in your previous year, that is in 11th standard. You have come across with the concept at least, that is what is utility. And how do this utility comes into existence? It depends on the level of your want, what you want, what is satisfying you and what is not satisfying you. That gives the emergence to utility. So let's see here, what is want? Let's recall this. We have seen this in 11th standard. So want denotes a feeling of lack of satisfaction. मतलब आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो and then at some point of time you feel that it is not worth utilizing, it is not worth making use of, तो आप उसके बदले कुछ और चाहते हो. You need something else besides that, you need in place of that whatever you are making use of. Secondly, wants are unlimited. It gets multiplied with the passage of time. As the time passes on, आपकी want जो है बढ़ती जाती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, and then it gets multiplied further. Then they are recurring in nature, यानी you never gets satisfied at one particular point of time. So it gets recurring, like you make use of it again and again. You make use of it again and again. Then they differ with age, gender, seasons, habits and culture. So it depends. आप छोटे बच्चे हैं तो उनकी क्या want है. Then male female है तो their wants differs from each other. Then depending on seasons, your habits, your taste and culture etc. determines the want. Then all these wants leads to utility. And what is utility? Utility is a capacity of a commodity to satisfy human wants. This is the definition of utility. Or in other words, you can say that utility is the want satisfying power of a good. Suppose if I am making use of this pencil with a point, okay, and I am trying to point out, I am trying to highlight, I am trying to underline the things with this particular point, but if I turn it up, turn it up or down, we can see there is no point in it, there is no point in it. So if I'll try to underline something, or if I'll try to make a bracket, something like that, so things are not getting clearly seen. So this means that I'm not satisfied with the back part of a pencil, but what I needed is the point with which I can do my work. Okay, so you can see want satisfying power of a commodity is called as utility. So I can say that there is utility in a pencil which I am making use of. Alright, then you can see the introduction part of it. You have been already introduced to the concept of utility in class 11. This is what I have told you at the beginning of a chapter. This unit gives a detailed explanation of consumers' behavior. As far as utility is concerned, it is nothing but it is analyzing consumers' behavior. Consumer को क्या पसंद है, क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, वो किस तरह उसको यूज़ कर रहा है, all those things you can understand with the help of this lesson. Then in practice, अगर हम practically देखें तो every individual tries to satisfy his wants with available resources. Whatever I have, I try to satisfy my want. Whatever you have, you try to satisfy your want. Okay, so it is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. So whatever available resources we have, we try to satisfy our wants with that much of resource only. तो हम वहाँ पर सारी की सारी want एक साथ में satisfy नहीं कर पाते. We give them the order of priority. कौन सी want हमारी पहली होनी चाहिए, कौन सी दूसरी, and then go on. And then utility analysis explains consumers' behavior in relation to maximization of satisfaction. So here in this chapter you will learn how the maximum level of satisfaction can get attained with the help of utility in every product, in every service, in every goods etc. Okay, right, now let's move on with its फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. मतलब उसकी खासियत क्या है, आप कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ की मतलब देयर इज़ अ यूटिलिटी इन समथिंग और नॉट. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू विल रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस, यू विल रियलाइज इट्स फीचर्स, उसकी खसूसियात आप देख सकते हो विद द फॉलोइंग पॉइंट्स. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. Why it is called as a relative concept? Because utility is related to time and place, related with time and place
In what way? It varies from time to time and from place to place. Okay, so एक जगह पर यूटिलिटी अगर किस चीज़ की है तो दूसरी जगह पर उसकी अलग यूटिलिटी है, किसी वक्त पर उसकी यूटिलिटी है तो दूसरे वक्त में उसकी यूटिलिटी नहीं है, दैट वे. ओके, सो फॉर एग्जांपल, woolen clothes have a greater utility in the winter. So if I'll ask you to wear woolen clothes now in summer seasons, so do you find any utility in it? No. So it differs from time to time. Then sand has greater utility at the construction site than at the seashore. So if you'll carry a sand from the seashore to the construction site, you can say that it can get utilized, उसका इस्तेमाल है. लेकिन seashore पर आप देखें तो it gets lying. Okay, so it differs from place to place. This is the first feature of utility. Second feature of utility tells you that it is subjective concept. That is, it differs from one person to another. It differs from one person's psychology to another. So it is a psychological concept. यानी आपके दिमाग में आपको क्या पसंद है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी पसंद है. So utility differs from person to person. Why this happens? Because this is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, हैबिट्स, प्रोफेशन, एक्सेट्रा. ठीक है ना. तो एक इंसान को जो चीज़ पसंद है या उसका जो प्रोफेशन है वो दूसरा अडॉप्ट नहीं कर सकता बिकॉज उसको प्रोफेशन पसंद नहीं है. से एन इंजीनियर डजंट लाइक टू बी अ टीचर. if he is an engineer, he will get satisfied or he is satisfied with his own profession. उसको हम बोलेंगे कि टीचिंग कर ले तो वो नहीं कर पाएगा. ओके, सिमिलरली अ डॉक्टर कैन नॉट बी an engineer because he has been professional in doctors, so he is satisfied with his own profession. if you'll tell him कि भाई आप जा कर के कंस्ट्रक्शन साइट पर देखो ये काम कैसे चल रहा है, तो he will not get satisfied with that work. So it differs from person to person since it is a psychological concept. किसको क्या पसंद है, किसी को नहीं है. एक नॉन वेज को आप बोलो कि वेज खा करके दिखाओ तो वो नहीं खाएगा बिकॉज उसे नॉन वेज ही पसंद है. ओके, सो टेस्ट, डिसलाइक्स, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. For example, now the stethoscope has utility to a doctor but not to a layman. ठीक है ना. स्टेथोस्कोप, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका हार्ट बीट चेक करने के लिए जो कान में आला लगाता है, जो मशीन लगाता है, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं. यू नो दैट. ठीक है. तो अगर हम उस चीज़ को हाथ में लें तो वी आर नॉट एक्चुअली नोइंग कि उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या है. हम क्या करेंगे, सिंपली हम हार्ट बीट उसको सुनेंगे, लेकिन उसको कितना सुनना है, कितने काउंट सुनना चाहिए, वो कौन बेहतर जानता है, वो सिर्फ एक डॉक्टर ही अच्छी तरह से जानता है. Got it? So this is what it differs from person to person since it is a subjective concept. Then third one is it is ethically neutral concept. यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे कुछ लेना देना नहीं है. अगर बंदे को किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी कंजम्पशन में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी काम में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इररिलेवेंट ऑफ वेदर इट इज़ गुड और बैड, एथिकली वो सही है या नहीं, उससे कुछ उसको लेना देना नहीं है बिकॉज उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो लेट्स सी दिस. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन. It is morally colorless concept. It comes for true or false. Utility is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, what is desirable or what is undesirable. ठीक है. Now here you can see with the help of an example. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables, as well as it can be used to harm someone. ठीक है. एक छुरी जिससे आप वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह काट सकते हो. एट द सेम टाइम उससे आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो. बोथ वॉन्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड विद द सेम कमोडिटी. द कमोडिटी सेम है, यानी क्या है, नाइफ, और दोनों से अच्छा काम भी लिया जा सकता है. मतलब उस नाइफ से आप दोनों काम ले सकते हैं, यानी कि आप अच्छा काम भी ले सकते हो, बुरा काम भी ले सकते हो. इसीलिए कहा जाता है कि यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल है. उसको अच्छा बुरा या डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल से कुछ लेना देना नहीं है. देन यूटिलिटी रिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. ओके, वाई यूटिलिटी जो है इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ठीक है. ये इन दोनों के बीच आपको डिस्टिंग्विश भी आता है. यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, इन दोनों के बीच आपको 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश भी आता है. तो व्हाट इज़ यूटिलिटी? आपको यूटिलिटी का डेफिनेशन लिख दिया. यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. वेयरएज यूजफुलनेस क्या है? यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी.
ठीक है, आपको कितना यूज़फुल है वो. फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूज़फुलनेस टू अ कंज्यूमर. ठीक है, दूध में दोनों चीज़ें हैं, यूटिलिटी भी है और यूज़फुलनेस भी है. वाइल लिकर यानी शराब, इट हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूज़फुलनेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, देन वी हैव okay, so we have fifth feature of utility, that is utility differs from pleasure. यानी आपको जो satisfaction मिल रहा है वो खुशी से आप उससे satisfied है या नहीं, उस चीज़ से वो अलग है. कैसे? A commodity may possess utility but it may not give any pleasure to the consumer. ठीक है, उसमें यूटिलिटी है लेकिन आप उसको खुशी खुशी यूज़ नहीं कर रहे हो. वाई? फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन. क्या चीज़? इंजेक्शन. इंजेक्शन से हर कोई भागता है, मेडिसिन से हर कोई भागता है. यूटिलिटी क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लगाने से आप जल्दी अच्छे हो सकते हो, तो उसमें बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम. हम इंजेक्शन लेते हुए खुश नहीं होते, डरते हैं कि चुभ जाएगा, अभी दर्द होगा. सो इट टेल्स यू दैट यूटिलिटी प्लेजर. देन वी हैव सिक्स्थ फीचर ऑफ यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम. ठीक है, खुशी अलग होगी. नाउ सेटिस्फैक्शन, हमें कितनी उससे जो है. यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि हमें उसको इस्तेमाल करना है. एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन. ये भी आपको डिस्टिंग्विश. ठीक है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन. तो व्हाट इज यूटिलिटी इन दिस केस? यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन. एंड व्हाट इज सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन. हाउ? सी, अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, आपको भूख लगी है और आपके सामने अच्छी अच्छी डिशेस जो है रखी गई है, एक प्लेट में रखी, एंड यू हैव बीन टोल्ड कि आप उसको सिर्फ देखो और जो है अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो. इज़ इट पॉसिबल? नहीं. जब तक आप वो खाना खाओगे नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू कंज्यूम इट. ठीक है, यूटिलिटी क्या है? कॉज ऑफ कंजम्पशन. यहाँ आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, कॉज ऑफ कंजम्पशन. और सेटिस्फेक्शन क्या है? इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. तो जब तक आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे, जब तक आप उसको खाओगे नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. Okay, so they are interrelated but still different concepts. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy his wants, his thirst. Utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of the consumption. आपको प्यास लगी है, जैसे मैंने आपको खाने का एग्जाम्पल दिया, तो इन दैट सेम मैनर अगर आपको प्यास लगी है और आपके सामने ग्लास है, तो कॉज क्या है? कॉज ऑफ कंजम्पशन क्या है? प्यास लगना, पानी. और एंड रिजल्ट क्या है? जब वो ग्लास आप पी लोगे तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मेरी प्यास बुझ गई है. ओके, सो दिस इज योर सिक्स्थ फीचर ऑफ यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी. नेक्स्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. यानी आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप उसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट, यू कैन रियलाइज दैट कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड. वाई? यूटिलिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. आपको दिखाई नहीं देता है, आपको उसको फील करना है. ठीक है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. हम उसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते कि आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी हुई, आपने कितना ग्लास पानी पिया और आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी. दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एंड फाउंड ईदर पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. हम ये कह सकते हैं हाँ पॉजिटिवली मुझे जो है 2 ग्लास में मुझे, ये हम बोल रहे हैं कि हाँ 2 ग्लास पिया मेरा दिल भर गया, मुझे अच्छा लगा. ठीक है, या फिर बोलेगा अगर यार 2 ग्लास पीकर भी मुझे मेरी, या फिर बोलेगा कि मुझे 1-2 ग्लास और लेना पड़ेगा. यानी कि आप उसको एक्चुअली नंबर में बता नहीं सकते हो. अभी ग्लास में आप बता रहे हो कितना लीटर आप पी सकते हो, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. इट्स सो यू कैन से दैट नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी. यू कैन से दैट कि यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल. आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्चुअली काउंट इट आउट इन कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट. ठीक है, एंड देन नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड
डिसयूटिलिटी। तो आप एक लेवल ऐसा आता है कि आपकी पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, देन उसके बाद में आपका मन करता है कि नहीं, अब मुझे नहीं खाना चाहिए, अब मुझे नहीं पीना चाहिए। दैट इज़ योर नेगेटिव यूटिलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी। देन एट्थ पॉइंट और एट्थ फीचर इज़ यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। एक ही वक्त में आप बहुत सी वांट्स अपनी सेटिस्फाई कर सकते हो विथ वन पर्टिकुलर कमोडिटी। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन. It can also be put to several uses. For example, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो आपके घर में जितने मेंबर हैं तो दे कैन बी यूज्ड टू सर्व मैनी पर्पसेस एंड फॉर मैनी पीपल, जितने भी लोग हैं घर में सबको। जैसे ही लोड शेडिंग होता है, लाइट चली जाती है तो सारे के सारे डिससेटिस्फाइड होते हैं, अरे यार लाइट चली गई, सब परेशान हो जाते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पसेस, यानी आप एट अ टाइम उससे फ़ैन भी चला रहे हो, लाइट भी चला रहे हो, आपका वाईफाई भी चल रहा है, आपके मोबाइल भी चार्ज हो रहे हैं, आपका लैपटॉप भी चल रहा है, आपका रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, आपका वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, हीटर, गीज़र, एसी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन यूटिलाइज इट। लेकिन जैसे ही लोड शेडिंग होती है तो क्या होता है, यू गेट डिससेटिस्फाइड and then it satisfied many people at some point of time. It satisfies many people's want at some point of time. Okay, so utility is. Then ninth feature tells you that utility depends on the intensity of want. इंटेंसिटी यानी कितनी अर्जेंट आपकी वांट है, पहले हमें उसको सेटिस्फाई करना है। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. Got it? जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ज़्यादा उसकी यूटिलिटी है. एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, यूटिलिटी डिमिनिशेस. ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी ज़रूरत, मतलब आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पहले चाह रहे थे कि मुझे ये चाहिए, तो जैसे जैसे उसकी अर्जेंसी ख़त्म होने जाती है उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होती है, कम होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री. ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा भूखा है उसे खाना दे दो तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी देन दो लोगों को बिठाओ, एक कुछ खाकर आया हुआ है और एक पूरा भूखा है, तो आप जो भूखा इंसान है उसको दोगे तो वो अच्छा पेट भर के खा लेगा. वेरेस द सेकेंड वन हु हैड ऑलरेडी हैड समथिंग, उसको अगर हम दे रहे हैं ज़बरदस्ती खाने के लिए तो एक तो मोर्सल लेकर के उठ जाएगा, नहीं यार मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए. दैट वे. ओके, सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. तो बहुत ज़्यादा जो भूखा है उसके लिए यूटिलिटी बढ़ती है और जो ऑलरेडी खा चुका है उसके लिए यूटिलिटी डिमिनिश होती है. देन द लास्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. यूटिलिटी की वजह से डिमांड में आता है. अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम. ओके, तो अभी आप लोग देखते हैं कि आजकल हर एक के पास आईफोन का सबको भूत चढ़ा हुआ है कि मुझे आईफोन चाहिए, बिकॉज इट इज़ हाईली इन डिमांड. एंड यू मस्ट बी हर्ड समथिंग अबाउट इट कि इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसका बैटरी लाइफ अच्छा है, इसका सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हो तो उसका डिमांड बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन्स. ठीक है, अभी जैसे हार्ट पेशेंट हुआ, शुगर पेशेंट हुआ, जिसे मेडिसिन के बगैर चलेगा ही नहीं, तो उसे मेडिसिन लेना ही है. मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन. ओके, सो उसे मेडिसिन के बगैर रहा नहीं जाएगा, सो ही नीड्स द मेडिसिन. सो दीज आर द 10 features which comes for 4 marks. Okay, now for writing an answer of this particular, like what are the features of utility, तो आपको ये देख रहे हो हाईलाइटेड वंस, इसको आपने एक साथ में लिखना है. राइट, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. उसके पहले आपको डिफाइन करना है. यू हैव यूटिलिटी डिफाइन करने के बाद में आप लिखोगे फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. यू हैव टू जॉट डाउन ऑल दीज 10 points. Then out of these 10 you have to write minimum 5 points in detail, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है. और आपको यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन द टेक्स्ट बुक एज इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड, इट इज़ स्पेशली सेट विथ द इंटेंशन टू राइट. Then we have next subtopic of a chapter, that is types of utility. This again comes for 4 marks as well as for 2 marks.
4 marks full length answer, okay, and 2 marks it comes for distinguish, and for 2 marks it comes for identify and, ठीक है. तो इट ये अगर आप इस इन 6 की इसकी इट types of utility. So if you remember this, or if you learn it nicely, so you'll be preparing for all these 3 questions. Following are some of the different types of utility. सबसे पहला होता है form utility, created due to a change in the shape or structure of an existing material. Form utility, ठीक है. जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको बनाया जाता है किसी चीज़ में, किसी स्ट्रक्चर में मोल्ड किया जाता है, फिर उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, तो वी कॉल इट एज फॉर्म यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, टॉयज मेड ऑफ क्ले या फिर प्लास्टिक्स, फर्नीचर फ्रॉम वुड एक्सेट्रा. देन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक को मोल्ड करके वाटर बॉटल, स्टील की वाटर बॉटल्स बनाई जाती है जिसको आप यूज़ करते हो. बहुत से कंटेनर्स रहे हैं, बहुत सी चीज़ें स्टील की, एल्यूमिनियम की, जो भी है रॉ मटेरियल से उनको चेंज किया जाता है इन इट्स शेप एक्सेट्रा. तो यू कैन से दैट देयर इज द यूटिलिटी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म यूटिलिटी. So this is your first type of utility. Then we have second type of utility, that is place utility. When utility of a commodity increases due to a change in its place, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है, it is called place utilities. For example, woolen clothes have more utility at cold places than at warm places. Similarly, transport creates place utility. अल्फोंसो मैंगोज़ या फिर अच्छे फर्स्ट क्वालिटी के जो मैंगोज़ होते हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है टू दी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो वी कैन से दैट there is place utility created. Then we have third type of utility called as service utility. Service utility arises when personal services various professionals, जैसे कि डॉक्टर हुए, लॉयर हुए, टीचर्स हुए, पुलिसमैन हुए, जो भी है आपको हेल्प कर रहे हैं, तो सोशल वर्कर्स दे आर हेल्पिंग यू. फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, पुलिसमैन एक्सेट्रा. पोस्टमैन, पहले पोस्टमैन हुआ करते थे, अब तो पोस्टमैन की ज़रूरत नहीं रही. देन वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ यूटिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी. जब हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, तो वी कैन कॉल इट एज नॉलेज यूटिलिटी. व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, ये तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है. और when a person knows about its various functions. So you can see here a small child helping his granny to learn from the book. ठीक है, तो उनका नॉलेज बढ़ा रहा है. तो वी कैन. नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज possession utility. Possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. किसी एक ने दूसरे को दे दिया, तो वी कॉल दैट देयर इज अ possession utility created. For example, transfer of goods from the sellers to the buyers. ठीक है. Then we have time utility. When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, ठीक है, it is called time utility. For example, a student has more utility for textbooks during examinations. This is विडली क्लियर बिकॉज अभी आप लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे होगे. जब एग्ज़ाम आपके आते हैं करीब, तब कहीं जाके आप ओवरनाइट पढ़ाई कर लेते हो, या एक हफ्ता भर की पढ़ाई करते हो, या कोई महीने भर की पढ़ाई करता है. देन इन द वेकेशंस, टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी. में रखा जाता है, और जब ये चलता है कि अरे अभी शॉर्टेज हो गई है. समटाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अनियन का शॉर्टेज है, टमाटोज़ का शॉर्टेज है, सब वेयर हाउस में रखा जाता है, फिर उसको हाई प्राइस में मार्केट में रिलीज़ किया जाता है. एंड सेकेंडली यहाँ पर एप्ट एग्जाम्पल आपको दिया है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक. ब्लड बैंक में आपके लिए जो है ब्लड जो है स्टोर करके रखा जाता है. जब किसी को किसी भी ग्रुप का ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो यू कैन रेफ़र टू दी ब्लड बैंक ओनर्स. यू कैन रजिस्टर योर नेम एंड यू कैन से दैट कि हमको फला ग्रुप का ब्लड चाहिए, तो दे विल हैंड इट ओवर टू यू. बिसाइड्स दैट यू कैन सी these pictures, some pictures are given to you. In summer, people are preferring to have cold things. Cool, they usually visit to the cool points जहाँ पर हम आइसक्रीम, या फिर आप बहुत से बच्चे खाते होंगे गोला. ओके, एंड देन एट द टाइम ऑफ रेन यू कैन सी
time utility created, that is we are utilizing umbrellas during rainy seasons. And here you can see seasons people are making use of fire. Okay, so how the utility created, time utility has been created in different seasons also. So with these types of utility, this answer again comes for 4 marks. As I've told you, it comes even for 2 marks under lines, it comes for 2 marks under identify and explain the कॉन्सेप्ट. लाइक आपको एक सिचुएशन दी जाएगी या फिर ऐसे बताया जाएगा कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ऑफ ब्लड बैंक, तो दे मे आस्क यू दैट so and so person required a blood, so he went to the blood bank for that particular group of ब्लड. तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको लिखना है, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट इज टाइम यूटिलिटी. उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है, यानी कि आपको ये एग्जाम्पल लिखना है. इसका डेफिनेशन of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. फिर उसके बाद एक कंक्लूडिंग लाइन देनी, यानी जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आपने वापस से उतार देना है. ये मैं आपको बाद में एज एंड व्हेन वी you know how to write down this answer. So here you surely get 2 marks for without losing anything in it. So you have to keep yourself thoroughly prepared with this chapter. Okay, so we will be continuing in our next lecture.